ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਮਬੇਰੂ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਠੇਠ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੂੰਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ। ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਮਸਤ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਢਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਢਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਠਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਛੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵੜੋ, ਬਨ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਟੇ, ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1-2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਲੌਟੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੁਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ
और उस तो किसी समस्या का समाधान नहीं आता, या उसके दिमाग दे चों गीत दियां लहरां नहीं निकलदियां, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होंदा है, कि वो कही ही जानता है, कि वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफ़ी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नूं सौंदा है। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोज़मर्रा के कर्म के मुताबिक ग्रंथ चुकिया, पर पत्नी ने आख्या नहीं, तुसी पहले जाओ नदी तट के इशनान करो, रोज़मर्रा के ब्राह्मण के जिहड़े कर्म ने उन्होंने निभाओ, प्रभु भगती करो, नितनेम करो, फिर इस ग्रंथ नूं लिखण की कोशिश करो। वो गैबी शक्ति रखने वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे, आप रहमत करनगे। कहंदे ने पत्नी की यह गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट की तरफ जा रहे ने, सोच रहे होया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे, पर कुछ उभरदी दिखाई नहीं देती। अज हिरदा ऐसा अमावस की रात बनया होया है, जिहदे च कोई चमकदा होया मामूली जिहा तारा भी नहीं, स्यारा भी नहीं। कहंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट की तरफ। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव का ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख देतियां, सुनहरी स्याही दे च लिखियां, जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तो वह भजी हुई आई ते कहन लगी रस्ते च वापस आ गए, इशनान नहीं किया, नितनेम नहीं किया, बंदगी नहीं की थी। तो जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन, कहने लगे पंक्ति फुर गई सी, लिखण लई वापस आ गया, ग्रंथ संपूर्ण हो गया, ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ये अगम्य शक्ति। पद्मावती भोजन बनाने विच लीन। इतनी देर विच श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए। गोबिंद गोबिंद की धुन गीत अलापदे हैं। घर विच प्रवेश होंदियां की देखते ने, पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहते ने, मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी, पर तू भी भुल गई। मैनू खिला के ही तू खांदी आउंदी सी, अज की हो गई, बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं, तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना, थानू बहुत खुशी हुई सी कि उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है, पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गए, हैं मैं भोजन छकया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है? हाँ संपूर्ण हो गया है, तुसी खुद ते कहा, और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखियां ने, मैं खुद वेखियां ने। भजे हुए जयदेव गए, ग्रंथ नूं खोलदे ने, वाकई ग्रंथ संपूर्ण, दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखियां हुई ने। अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे। जैसे इस पंक्ति नूं पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए, अरचजता के रहस दे लीन हो गए। एकदम आपके सरूर तारी होया, अरदास की थी, हे त्रिभुवन धनी, हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मेरे जवाब विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा कि मैं आप लिख लेंदा। ये खेचना तुसी क्यों कीतियां? तां कहंदे ने अलहाम होया, आकाशबाणी हुई, अंतरात्मा बोली, जयदेव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां
ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ की रचना मैं की है, इसका करता मैं हाँ। ते जद भी किसी भगत नूं इस प्रकार का अहंकार हो जाता है तो अपने आप को करता मन लेंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है कि तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई विथ होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जयदेव अश्कबार हो, बार बार सजदे च छोड़े, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, अज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम दे तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमे आया। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां की दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद के कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके हैं और इन्हां गीतां विच भगति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आप दा एक संस्कृत दे बड़ा ही सोहना पदा उच्चारण किया होया है जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे गुजरी राग के अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। हे मन केवल राम नाम दा रमन कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम ने सुरत लीन करिए, तो उस राम की आप तशरीह कर देने, उस राम की आप व्याख्या कर देने। इस पद विच परमाद पुरख मनोपिमं सत्याद भाव रतन पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसका मूल नहीं लभ्या जा सकता और जो सब दा मूल है, जिहदी बुनियाद का कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है। ऐसा जिहड़ा ब्रह्म है वो अनादि परमाद पुरख, वो फिर पूरे होया है। पुरख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया है, व्यापक है, वो पुरख है। परमाद पुरख मनोपिमं, मनोपमा तो रहता है। दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर पर परमात्मा नूं नहीं लिया सकता। मन पूर्ण तौर पर जिसनों सोच नहीं सकता, मन जिसकी पूर्ण तौर पर कल्पना नहीं कर सकता, कि जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकता, उन्होंने जबान नाल कथन करना तो बहुत औखा, उन्होंने अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। जबान जिथे तक कथन करती है उतों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। कन जिथे तक सुन सकते हैं उस तो भी ज़्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवाज बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है। पर श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं चाहे कल्पना की प्रवाज कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर दी क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना दे नहीं आऊँगा। वो किसी की कल्पना दे नहीं आऊँगा। मन की सोच तो परे, मन के विचार तो परे। इस वास्ते आप कहते मनोपिमं, मनो उपमा तो रहत है। परमाद पुरख मनोपिमं सत्याद भाव रतन, वो सत चित आनंद आदिक भावां दे नाल रत्या होया है। वो सत है, वो चित प्रकाशमयी है और वो आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति विच राम की व्याख्या इंज करते हैं, परमाद पुरख मनोपिमं सत्याद भाव रतन परम अद्भुतन, परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जाता है, हैरान हो जाता है, बिस्माद हो जाता है। जिन्हों वेखे
कि पूरा वेख ना सके, जिन्हों सोचे कि पूरा सोच ना सके, और जिसनों चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके, फिर भी वो बच रहे, जिन्हों सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके, उत्थे बिस्मात दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे अचरजता ते रहस दा पैदा होना कुदरती गल है। कहते ने एक बच्चा रहस दे जीवदा है, एक कवि रहस दे जीवदा है, एक संत रहस दे जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग का बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहता मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं तो सब कुछ वेख लिया, मैं तो सारा सुन लिया, मैं उसनों पूर्ण तौर पर सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो अचरजता नहीं पैदा होती, रहस नहीं पैदा होता, बिस्माद नहीं पैदा होता। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि अज के समय जितने कॉलेज ने, जितने विद्यालय ने, ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावें कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस नूं खत्म जरूर किया, विस्माद नूं खत्म जरूर किया। मनुख की दुनिया दे जो एक विस्माद सी, रहस सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखने को नहीं मिलता। हाँ, बच्चे कोल ये बिस्माद है, अजे अबोध है, उसका बिस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल बिस्माद है, या इन कह लो कविता का जन्म ही बिस्माद तो होंदा है, कविता का जन्म ही रहस तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, और जो कुछ भी वेखते ने वो ऐसा महसूस करते हैं कि एक रेत के जर्रे नूं भी पूर्ण तौर पर वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नूं ते पूर्ण तौर पर देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नूं भी पूर्ण तौर पर देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नूं ते पूर्ण तौर पर देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नूं भी पूर्ण तौर पर देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होता है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस पैदा हो जाता है, फिर बिस्माद मंडल तारी हो जाता है। तो कवि बिस्माद दे जीवदे ने, संत बिस्माद दे जीवदे ने। भगत जयदेव जी महाराज कहते हैं परम अद्भुतन, ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है, परकृत परम, वो प्रकृति तो परे। कहते ने राविंद्रनाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे हैं, रस्ते विच एक गंदगी का ढेर पे है, सवेर का वक्त है, सूरज दियां किरणां उस गंदगी के ढेर नूं छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के राविंद्रनाथ टैगोर नच उठे, कहने लगे हे प्रभु, तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता का ज्ञान हासिल कर लिया। सूरज दियां किरणां गंदगी नूं छू रही ने, फिर भी किरणां गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां दे तू है, पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहते ने परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसदा चिंतन करन दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां, हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जाती है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लेंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है, प्रमाद पुरख मनोपिमं सत्याद भाव रतन परमद्भुतन परकृत परम जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है, परमात्मा का नाम है, उसनों तू पान कर, उसदे ही अमृत स्वरूप का जो है तू आनंद मां। अगां चल के इसे पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं कि न दानोद जस सिमरन, ना जन्म जराद मरण भयम। नहीं आउंदा जिहदे सिमरन करन दे नाल जन्म दा दुख
ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਮਨੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਈ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਿੱਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁਲਾਸ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਹੁਲਾਸ, ਉਸਦੀ ਉਮੰਗ, ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਗ ਔਰ ਉਸਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਨੋਦ ਜਸ ਸਮਰੈਨ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭੈਨ, ਇੱਛਸ ਜਮਾਦ ਪਰਾ ਭੈਨ ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮਾ ਦਾ ਤਿਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਜਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਜਸਵਸ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜਸ ਹੈ ਇਹੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा दा कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है, उसका चिंतन वो तो कर। इच्छस जमाद प्राभं जस्वस सुकृत कृतं, भवभूत भाव समभ्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते ने जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमया हुआ है, व्यापक है, भवभूत भाव समभ्यम, जो हुन भी है, पहले ही से अगाव भी जो है होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकालदर्शी है, भवभूत भाव समभ्यम परमन प्रसन्न मिलन, जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद दे चलीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान करते ने, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा। हरि दा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरि दा भगत है, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किम जगेन किम दानेन किम तपसा। ऐसा जो भगत है
जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विच लीन है, ਉਹਦੇ सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत के सामने दान भी कोई मैंने नहीं रखता। भाव दानी तो भी वो भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है, और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मनती है कि इन्हां सारे कर्म कांडां तो भगत की जिंदगी उच्ची है। जोग जग लै पल तुम मानो, जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उत्थे जोग जग की पहुँच नहीं है, दान की पहुँच नहीं है। ये सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत। हर भगत निज नह केवला, रिद कर्मणा बजसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहते ने, गोबिंद गोबिंद देत जप नर सकल सिद्ध पदन, जयदेव आयो तस्व पटन, भवभूत सर्वगतन। गोबिंद गोबिंद ऐ मनुख जाप कर, और इस तरह जाप कर दें तेनू सारी गतियां की प्राप्ति होवेगी, तेनू सब कुछ की प्राप्ति होवेगी। गोबिंद के चिंतन दे च ही संसार के सुख ने, परमारथ के सुख ने, गोबिंद के सिमरन